Very good morning, dear students. Good morning to one and all. So, students, today we are just going to revise the lessons, okay, in a short or in a brief, we can say. Okay, so students, the initial lessons or chapter, we can say, I have taught it very clearly in the initial videos of this session, okay, and today just I am going to revise that lesson because of in a few days your first periodic assessment is coming, okay, it is coming soon, and that's why it is very needed to revise the lessons and question answer of that particular lessons, okay, which is mentioned for your periodic assessment 2021. Okay, so students, actually the portion which was very essential I have taught you very clearly, but still for your revise and for your remember, it is very need now, and in this situation that you have to revise that portion and main points from the lesson number first. Yesterday means in the last previous period we have seen already, okay, and the few portion was remaining. Just I want to explain it the main highlighted portion which is very essential by taking the attitude of your examination, okay. So just you have to remember that thing, you have to concentrate on the book, okay. So dear students, as I oftenly say you that please open your textbook and try to understand the portion which I am going to highlighting or explaining in a sort of ways, okay. So students, these are the actually today we are seeing here in this period class 5 subject EVS lesson number 1. So just a revision is going on here, you know that. So our organ system we have seen few parts in the last period, okay. So revision is going on now. So let's revise means actually that is the portion of your exercise, means lesson number 1 exercise. Let's revise. So MCQs are there, fill in the blanks, true or false, match the pair, all the things we will discuss here in this period, okay. So students, actually the nervous system was going on. So nervous system is the portion of lesson number 1. So what is the nervous system, just I want to define here. Nervous system is actually that system एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे नर्व से रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी हमारे नर्व से जैसे हम बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, स्केलेटल की बात करेंगे, ठीक है। स्केलेटल मीन्स एक्चुअली इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ओके, यानी हड्डियों का ढांचा जिसे हम स्केलेटल्स कहते हैं, ठीक है ना। देन नर्वस सिस्टम मीन्स एक्चुअली दैट सिस्टम इज स्प्रेड इन आवर होल बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम जैसे हम फिंगर से लेकर लेग, हैंड फिंगर्स, लेग फिंगर्स, हेड, हैंड्स, लेग एंड ऑल द पार्ट्स देयर आर द nerve cells are spreaded, means veins, arteries we have seen already that. So nervous system means actually it is connected to the brain, okay, that is important thing. एक्चुअली नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, कि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ठीक है ना, जो इंटरनल पोर्शन में मीन्स वी कांट सी, हमको दृश्य, ठीक है ना, मीन्स इट इज द ऑर्गन्स, यू नो दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. सो ब्रेन इज आर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे शरीर का, जो कि ब्रेन बहुत ही वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स माना जाता है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर को इंजरीज होंगी, फीलिंग्स होंगी, ठीक है ना, जो भी वेदनाएं होती है, ठीक है ना, जैसे किसी का हाथ कट जाना, जल जाना, तो डायरेक्टली जो है मैसेजेस वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं नर्वस सिस्टम में, एक्चुअली वेन्स एंड वेसल्स के माध्यम से इमीडिएटली मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और हम क्या करते हैं, क्विक एक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। कोई अगर एक्सीडेंट, अगर आपके सामने एक्सीडेंट होता है तो आप उसको देखकर मीन्स एक्चुअली जो रिएक्शन है आपके बिहेवियर में, ठीक है ना, वो झलकता है या फिर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें किस चलते, ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन क्या है, अलर्ट हो जाता है एकदम से और हमारे बॉडी के पास की क्या है, एक्टिविटी शो करवाता है, एक्शन शो करवाता है। जैसे किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दे एकदम से, ठीक है ना, हॉट,
तो एकदम से हम हाथ बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज द मॉनिटर, क्या है, एक मॉनिटर है हमारे शरीर का, ठीक है ना। तो ब्रेन में जैसे हमारे चलता है वैसे हम अपने बिहेवियर को टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं, साथ ही साथ हम एक्टिविटी या फिर एक्शंस करते हैं। क्लियर? सो हियर इज आल्सो इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 में दिया है कि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नाउ द नर्वस सिस्टम लाइक अ नेटवर्क, कैसा है, नेटवर्क के जैसा है, दैट रिलेज मैसेजेस टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के जो वेरियस पार्ट है उनमें मैसेजेस रिले करने का काम नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। जैसे कोई भी वर्क करते हैं हम, रिटर्न वर्क, या फिर आप स्कूल में जैसे किसी आपके फ्रेंड के साथ फाइटिंग हो रही है और उसमें आपके बॉडी पार्ट अगर डैमेज होता है या फिर इंजरीज होती है फाइटिंग के दौरान, तो ये सारी चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, इमीडिएटली मैसेज सेंड करता है ब्रेन तक। और फिर हम, आप जैसे बच्चे हो क्राइम करने लगते हो या फिर आप कंप्लेन करोगे, रोने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें आप क्लासरूम में या फिर अदर एक्टिविटीज़ में भी आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक है। सो दैट इज द नर्वस सिस्टम। नाउ हियर इज द picture is also draw here in your textbook. Just observe that picture and try to understand. So actually nerves are there and brain are there, means it is connected to the brain, okay। जैसे एक आधा पार्ट, यू नो दैट पैरालिसिस नाम सुने, लकवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो लकवा जो है बेटा एक्चुअली कभी कभी समटाइम क्या होता है कि जो पीपल मीन्स फिजिकली डिजेबल है, यानी जो अपंग है या फिर दिव्यांग व्यक्ति बोलते हैं जिसको हम, तो उनका वन पार्ट जो है राइट लेग, राइट हैंड और लेग मीन्स लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड, ये क्या है, कमजोर रहता है, ठीक है ना, वीक रहता है वन साइड का पोर्शन। तो कभी भी उनको पैरालिसिस के चांसेस होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नर्वस के जो पार्ट है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन से बहुत सारे क्या है बीमारियां या फिर डिसीज होता है, और इसीलिए आपको अपना नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रखना जरूरी है। और वो कब रहेगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे, आपका खान पान अच्छा रहेगा, मीन्स जो डाइट आप लेते हो, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स फुल, ओके, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बॉडी के संदर्भ में, बॉडी से रिलेटेड आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अडॉप्ट करना है। मीन्स कहने का मतलब हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। नाउ सेंस ऑर्गन्स, सेंस यानी एक्चुअली सेंस का मतलब था संवेदना, ठीक है ना। जैसे सेंस मीन्स एक्चुअली दैट ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स मीन्स दैट ऑर्गन्स विच गिव अस द सेंस, जो हमें क्या देते हैं, सेंस या फिर इंफॉर्मेशन, अलर्टनेस, वी कैन अचीव or we can be alert with the help of sense organ, okay। so you know that ज्ञानेंद्रिय कहते हैं इसको, ठीक है ना। how many, there are 5 organs are there, okay, just like eyes, nose, mouth, okay, tongue we can say, then ears, okay, and the skin, these are the सेंस ऑर्गन्स। वाई इट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन, बिकॉज अगर आपको किसी ने मार दिया तो मीन्स हाथ या आपके हाथ पे या फिर आपकी स्किन को किसी ने टच कर दिया, या फिर ठीक है उसको जोर से पकड़ के खींच रहा है कोई, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो आपको ईजा या फिर जो भी वेदनाएं आपके बॉडी को हो रही है, स्किन को हो रही है, तो वो सारी आपको फील करवाती है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप आपकी बॉडी, जैसे हम देखते हैं कि रेनी सीजन और समर सीजन दोनों में डिफरेंस हम डिफरेंट टाइप कैसे करेंगे कि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रेनी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ठंड और गर्मी, ठंडी और गर्मी, ये हमें किस चीज़ से पता चलती है, हमारे बॉडी के ऊपर से, बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि ठंडी में हमारी बॉडी जनरली ठंड बहुत रहती है तो हम वूलन कपड़े पहनते हैं, और गर्मी में फैन एसी कूलर का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये नॉलेज कहाँ से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्किन, एंड दैट्स व्हाई स्किन नोन एज द सेंस ऑर्गन। क्लियर? उसके बाद आके हम ये सारी सृष्टि, ये सारा जो ब्रह्मांड, आसमान, धरतीवासी यानी लोग, ठीक है ना,
या फिर जो भी रिसोर्सेज है इस पृथ्वी पर वो सारी चीज़ें हम आँखों से देखते हैं। मीन्स आँखें कहीं ना कहीं हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, सेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। व्हाट इज हैपनिंग देयर, क्या हो रहा है वहाँ पे, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट वी शुड नॉट डू, ओके, ये सारी चीज़ें हमें आँखें सिखाती है। और इसीलिए हम आँखें मीन्स आइज आल्सो द सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। कानों से हम सुनते हैं, ईयर ये भी, यानी जो सुनी हुई चीज़ें हम एडॉप्ट करते हैं, आत्मसात करते हैं, हमारे डेली रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए हमारी जो ईयर्स है मीन्स कान, वो भी क्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स माने जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उससे हम साउंड सुनते हैं, अलग अलग तरीके की जो वेरियस वॉइसेस है उससे सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा, या फिर किसी के गाए हुए सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ें बेटा हम सीखते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन ईयर्स के माध्यम से मिलती है और इसीलिए उसे सेंस ऑफ ऑर्गन्स कहा गया है। क्लियर। देन टंग की बात करते हैं हम, जीभ टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं कि ये टेस्ट है बिटर, स्वीट, साल्टी, ओके। तो इस चीज़ का नॉलेज हमें टंग के माध्यम से मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं बेटा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ we will see the question and answer, okay। so just I am telling you, okay। जैसे फर्स्ट हमें देखिए इसमें रिवाइज में ये क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में दिया है, ये हाईलाइटेड है बेटा, इसको आपको क्या करना है, याद करना है बार बार। जैसे हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जस्ट बी विथ मी एंड कॉन्सेंट्रेट हियर सिंसियरली, ओके, और केयरफुली वी कैन से। So dear students, now the first put tick on the correct option. So just I am reading from your textbook. You have also textbook. Just you have to concentrate there. आपको क्या करना है, concentration करना है। जैसे first one दिया है बेटा, the process of digestion start from, यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस है जो कि हमारे पेट में होती है, ठीक है ना, स्टमक में होती है डाइजेशन, यानी पचन प्रक्रिया या फिर पाचन प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो चार ऑप्शन आपके लिए दिए हैं, ए बी सी, सॉरी 3 ऑप्शन आर प्रोवाइडेड फॉर यू। फर्स्ट फूड पाइप, सेकेंड स्टमक एंड थर्ड माउथ। तो इसमें करेक्ट आएगा माउथ। माउथ क्यों करेक्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट बाइट हम इंसर्ट करते हैं हमारे मुंह से, ठीक है ना, और इसीलिए जब तक हमारे पेट में स्टमक में बाइट नहीं जाएगा या फिर पदार्थ जो भी है अन्न पदार्थ वो नहीं जाएगा, तब तक हम क्या करते हैं, हमारे पेट में डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती, और इसीलिए माउथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ द सेकेंड वन हियर, बाइल इज द डाइजेस्टिव जूस मेड बाय, ठीक है ना। बाइल जो है एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि मेड बाय किसके द्वारा बनाई जाती है, लीवर, ओके। नाउ द 3 ऑप्शन इज देयर, किडनीज, stomach and liver. So liver is the correct option. That things we have already learned in the portion of liver, okay। Then number 3 means the system that supplies blood to all the part of body, यानी ऐसा सिस्टम जैसे रिसेंटली हमने देखे कि जो सप्लाई ब्लड को सप्लाई करता है, मीन्स पुरवठा करना, ठीक है ना, वन प्लेस टू अनदर उसको फॉरवर्ड करना या फिर ट्रांसफर करना। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर दिया है, पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर बी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर सी एक्सक्रेटरी सिस्टम। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेट होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट वन बी इज गिवन देयर, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक फिल करना है। देयर आर नो एनी ऑप्शन फॉर योर चॉइस, आपकी चॉइस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही अपने मन से या फिर बुक में से फाइंड आउट करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स फुलफिल करनी है, क्लियर। तो इसमें बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर चुका हूँ, फिर भी हम एक बार यहाँ पे एज अ रिवीजन के तौर पे इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। आपको कंसंट्रेशन करना है मेरे बोलने के ऊपर, और जो बच्चे मिस किए हैं इस वीडियो को या फिर ये क्वेश्चन आंसर, वो डेफिनेटली आई होप दैट दे विल डेफिनेटली कंप्लीट थ्रू दिस वीडियो, ओके।
So my dear students, just recently we have seen the first one. Okay, ये जो first one है अभी हमने देखे put the correct or correct option. Okay, put the tick करना है आपको correct option पे, ये चीज हमने देख ली। इसके बाद नेक्स्ट बी पोर्शन लिखिए fill in the blanks। ठीक है, आपके लिए कोई ऑप्शंस प्रोवाइडेड नहीं है, that you have to fill by searching from your textbook. Now the fill in the blanks में दिया है the blank space कनेक्ट माउथ टू द स्टमक। ठीक है ना, हमारे मुंह से स्टमक तक कौन सी चीज कनेक्ट रहती है? सो द आंसर विल बी द फूड पाइप। क्या होगा? फूड पाइप। नाउ द नेक्स्ट वन, और फूड पाइप को दूसरा एक नाम सोपैगस। क्या है? सोपैगस नाम। मीन्स बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट हियर, यू कैन राइट एनी वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एक्चुअली given here in your text, concentrate on your textbook. So next one is blank space are the filter of the body। ठीक है ना, यानी हमारे बॉडी का जो फिल्टर है किसे कहा जाता है? सो इट इज द किडनीज। ओके, सो किडनीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकेंड वन। नाउ नंबर 3, देयर आर ब्लैंक स्पेस टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ। ठीक है, हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ होती है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हाउ मेनी? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। So we are seeing the second one. Now we were on the third point. There are 4 types of teeth in our mouth। ठीक है ना, हमारे माउथ में 4 प्रकार के टीथ होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, नाउ द नंबर 4, ब्लैंक स्पेस ग्लैंड्स प्रोड्यूस सैलिवा। ठीक है ना, सैलिवा कौन प्रोड्यूस करता है? सो सैलिवरी ग्लैंड्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सैलिवरी विल बी द करेक्ट वर्ड, यू हैव टू पुट इट नाउ। ओके, then number 5, the fifth primary test is which is the fifth primary test? So it is the umami. Okay, also given in your textbook. Now that is the means number B portion has been also completed here। Okay, now the next one, write true or false। true और false देखते हैं फटाफट हम। इसमें देखेंगे बेटा फर्स्ट वन, नर्वस सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द और बॉडी। ठीक है ना, वेस्ट एलिमिनेट्स नहीं करता नर्वस सिस्टम, दैट विल बी अ फॉल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम का काम होता है कि नर्वसेस मींस टू फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड द ब्लड टू द नर्वसेस। नाउ देयर आर 4 इंसिसर इनसाइड आवर माउथ। इंसिसर मींस इट इज द नेम ऑफ टीथ। ओके, वो कितने होते हैं? 4 होती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे। सो दैट इज आल्सो ट्रू। नंबर 3, लार्ज इंटेंस साइड इज द स्मॉलर देन स्मॉल इंटेंस साइड। ठीक है, लार्ज इंटेंस साइड इज द स्मॉलर देन, लार्ज बोले तो बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो स्मॉल से कैसे छोटे होंगे? इसलिए इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ देन आफ्टर दैट ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्शन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ट्रू। मींस इनिशियली आई टोल्ड यू, जैसे पहले बताया, ब्रेन क्या करते हैं? हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। मेन मॉनिटर जो है हमारे बॉडी का वो क्या है? ब्रेन है। देन फिफ्थ, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दैट इज ट्रू, क्योंकि स्किन से हमें सेंस मिलता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट। एंड आफ्टर दैट नंबर डी क्वेश्चन। ओके, सो नंबर डी, द क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आर हियर in the D section। so just I have sent it in the group, just you have to remember। आपको क्या करना है? याद करना है। so all the MCQs from this lesson we have discussed in this period। I hope that you understood very well। so students, that is sufficient for today's video। I hope that you understood very well। thank you for watching this video seriously, concentrately। I hope that you understood very well whatever I explained here in this period। I will come or we will meet in the next period with a new topic or new chapter। Okay, thank you and have a good day to all। thank you।